Class 11, today we'll start with the new chapter, that is the redox reaction. And in this you will first of all we'll just go through the introductory part of it, and we'll discuss about the oxidation and the reduction part and the redox reaction. Then we'll go the detail of it. So you know the about the oxidation, there are different concepts of oxidation. The first concept arises that we say that is the addition of oxygen takes place. So if we see that addition of oxygen takes place, suppose I give you any reaction. So, for example, carbon reacts with oxygen, give you CO2. So there is an oxygen addition takes place. That's why it is being mentioned as oxidation. So for balancing, you can see it is balanced. So this is one way how you can say this is oxidation takes place. So every time you are adding what oxygen. Second example, if you focus removal of hydrogen, so you have to remove the hydrogen from it. So suppose I am writing one reaction of it. So again you will see this reaction. So in this what you are doing, you are just removing the hydrogen, uh, and this way also you can say about oxidation. देखो जैसे H2 से हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीन there, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन हो रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग यू HCl. अब तो इतने बड़े हो कि यू नो हाउ टू डू इट. ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ के HCl बना रहा है एंड सल्फर इज बीन देयर. सो व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज ऑल्सो कमिंग इन ऑक्सीडेशन बिकॉज देर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, है ना. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, इस जगह जो बना है यहाँ सिंगल हाइड्रोजन है. So this is also way for explaining oxidation. There is one more way, that loss of electrons takes place. I think you have this thing you have discussed. I am again telling you one example. So over here you are removing, you know, Na has +1 valency 1 होती है, तो एक remove होता है ना electron from their outermost orbit, if you remember this concept of class 10th. So one electron is been removed from their outermost orbit, तो Na plus हो जाता है. So there is the point how you can discuss that how oxidation is taking place. So this way we can see how this is happening. Let's go for the reduction part. So the first part, reduction, is always there is a addition of hydrogen takes place. I am just writing H, you write down hydrogen full. So let's focus how it is possible. So for example, I am writing one reaction, and this way Cl2 plus H2 reacts करता है, it gives you 2 HCl. ठीक. ओवर here if you see that this reduction of chlorine is taking place ना, Cl2 है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना Cl पे. देखो ये इसका पार्टनर है. सो Cl2 में जो है आप हाइड्रोजन ऐड करके HCl बना ले रहे हैं. तो दिस इज़ वे हाउ यू आर सेइंग देयर इज़ अ reduction of chlorine is taking place, and what you are doing, addition of हाइड्रोजन यू आर डूइंग. अगेन ये रिमूवल ऑफ, ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस. अब वहाँ पे क्या करा था आपने, ऐड ऑन करा था, यहाँ आप रिमूवल. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंपाउंड लिया जो कि ऑक्साइड फॉर्म में, कॉपर ऑक्साइड, वो किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है. ये आप क्लास 10th में भी देख चुके हैं, बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट से. कार्बन था, हाइड्रोजन था आपका, है ना, नेसेंट हाइड्रोजन था. तो आई एम टेकिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. और व्हाट हैपन कि दिस थिंग इज इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी रिड्यूस. सो व्हाट विल हैपन, ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा, इट गिव यू कॉपर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये देखो ये इसका पार्टनर है. ये थोड़ा पार्टनर्स पे भी ध्यान देना, आगे काम आएगा. तो रिडक्शन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना, तो रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड टेक्स प्लेस. नाउ द नेक्स्ट टर्म जो हमें देखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में, तो ओवर हियर यू हैव सीन देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, है ना. वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. सो लेट्स फोकस ऑन इट. सपोज हमें कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल Na है, H है, H प्लस है, इसमें यू आर सीइंग दैट दिस H प्लस इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस. सो यू वांट इट दैट इट शुड बिकम H अगेन इन फॉर्म ऑफ एटम. ये आयन है जो एटम में कन्वर्ट हो रहा है. सो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा एक एटम. यहाँ आयन था और यहाँ एटम बन गया. तो दिस वे यू कैन हैव, जैसे हमने Na प्लस हमने देखा था, है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो आप इसको चाहते हैं वापस Na हो जाए, एटम में कन्वर्ट हो जाए, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड ऑन कर देंगे. सो दिस वे यू कैन हैव. जैसे सल्फ़र है, वो तुम्हें मालूम है सल्फ़र पे ये सल्फाइड S-2 होता है ना, तो इसको कैसे करा आपने, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपने 2 इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस कर सॉरी ऐड ऑन कर दिए, और ये आपका S- हो गया. तो दिस वे यू कैन सी अबाउट योर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन.
नाउ नेक्स्ट टर्म अराइजेज अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन देखो नाम में ही छुपा हुआ है कि रिडक्शन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एज वेल एज ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. दोनों बातें होती हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीजन बोथ रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. सो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा. तो ट्रांसफ़र जो होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर होता रहता है, तो वो रिएक्शन हो जाती है आपकी. आप कहते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है. तो बोथ रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. अ रिएक्शन इन विच electrons are transferred from one reactant to another is called as redox reaction. So let's focus on it, few examples of it, तब हमें अच्छी तरह समझ में आएगा. जैसे Zn है, HCl है, ठीक है. So you know this is very common reaction which you have seen. देखो समझने का ये है कि यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि किसमें क्या है ना. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से अटैच्ड होगा तो ZnCl2 बनाएगा, और प्लस आपका H जो है खाली तो रहेगा नहीं, हाइड्रोजन गैस बना लेगी ये. सो दिस वे यू बैलेंस इट बाय 2. ये चार्ज मत लगाना ऊपर, ये समझाने के लिए, सो दैट इट बिकम ईजी फॉर यू ऑल. सो दिस वे नाउ लेट्स फोकस ऑन इट, व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ नॉट. सो इफ़ यू फोकस दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, नाउ लेट्स सी दिस टर्म पार्ट. आपको दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन ये Zn है, ये एक सॉलिड स्टेट में है. अगर इसको देखें तो ये H+ बना रहा है, ये आयंस के फॉर्म में देखो Cl- बना रहा है. ये दोनों 2 फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि आगे 2 लगा है. ये Zn अगर इसमें देखें तो ये +2 रहा होगा. Cl का देखा जाए ये माइनस है लेकिन 2 रहा होगा, प्लस ये हाइड्रोजन गैस है, ये तो गैस ऐसी रहेगी. अब पॉइंट देखो, ये दोनों एक से हैं, इनको आप इग्नोर कर दो, है ना. तो आप सिंपली इस रिएक्शन को Zn आयंस के फॉर्म में 2H+, ये कब है, जब एक्वस कंडीशन पर है, और Zn+2 वो तो हटी है ना वहाँ से, और H2 गैस, ठीक है. ये आयंस आ गए हैं तो इसका मतलब ये एक्वस कंडीशन. ये याद रखना, आयंस तभी मिलते हैं जब एक्वस कंडीशन होती है, यानी वाटर में डिजॉल्व है. नाउ लेट्स सी द पेयरिंग पार्ट. देखो ये इसका पार्टनर है ना, क्योंकि सिमिलर दिख रहे हैं, और ये इसका पार्टनर. अब हमें इन दोनों को समझना है कि कैसे है इस पर्टिकुलर रिएक्शन, कैसे ऑक्सीडेशन, कैसे रिडक्शन हो रहा है. नाउ लेट्स फोकस ऑन Zn. इंडिविजुअली टास्क देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि समझने में भी आसान रहेगा. Zn जो है वो Zn+2 बना रहा है. ये कब बनाया उसने, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तब उसने Zn+, यानी इस पोर्शन में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ व्हाट, ऑक्सीडेशन. दिस वे you can understand about the oxidation part. I think this much is clear to you all. Now let's focus on this part. जो H+ है ये 2 है, ये H2 बना रहा है ना. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया. ये कब हुआ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये तभी रहा होगा. समझने के लिए हम कर रहे हैं, जब 2 लॉस हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, तब जाके इसने H2 बनाया. क्लास 10th का आ रहा है, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग प्लेस. तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन. कुछ पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर दैट टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं उतने ही गेन होते हैं. देखो जितने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर से कहीं थोड़ी आते. इसने लूज़ करे 2 इलेक्ट्रॉन, इसने एक्सेप्ट कर लिए वो इलेक्ट्रॉन. ये याद रखना कि ऑक्सीडेशन में जब जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो सब रिडक्शन के टाइम में एक्सेप्ट हो जाएंगे जो दूसरा पर्टिकुलर रिएक्टेंट होगा. तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी. दिस इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, दिस इज़ रिडक्शन. दोनों साइमल्टेनियसली चल रही है. अब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन चल रहा है और यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका रिडक्शन चल रहा है. दोनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जा रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन. नाउ देयर आर 2 टर्म्स अराइजेस, ठीक है. एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको भी समझ लीजिए थोड़ा, तो थोड़ा आपको आसानी रहेगी कि हाउ यू कैन पुट. अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको ये तो पता रहे कि जो आपने रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है इसमें कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो जा रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जा रहा है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सब्सटेंस दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स. और रिड्यूसिंग क्या होते हैं, दे लूज़ इलेक्ट्रॉन. अब हम आराम से समझ सकते हैं, इन दोनों को हमें देखना है कौन हमारा, हम क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन हमने देखी है तो उससे हम एनालाइज करेंगे कि इन दोनों में से कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. कौन गेन कर रहा है, H+. देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो यहाँ पे ये क्या एक्ट करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को. तो Zn यहाँ क्या करेगा, कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट. ये
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग, ऐसे जो भी एग्जांपल्स आप देखते चलें बुक्स में उन सबको आप प्रैक्टिस करिएगा। पर ये कॉन्सेप्ट है जो विच यू हैव टू एनालाइज अबाउट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कभी कभी पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अराइजेज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाफ रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यही हमें मेनली काम आएंगी। और जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होता है, तुम अभी यू हैव सीन दैट इट कंटेन्स योर ऑक्सीडेशन part also reaction and reduction reaction also, the oxidation reduction process both are taking place. So overall जो redox reaction होती है वो split हो जाती है आपके टू में, और वो जो splitting होती है जैसे redox reaction को आपने split कर दिया है टू हाफ इक्वेशंस में, ठीक है। अब ये टू हाफ रिएक्शंस या इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होती है आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक होती है आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो टू हाफ इक्वेशन या रिएक्शन लिख लो इसे। सो लेट्स फोकस ऑन इट। सपोज करो हमने अपना पीछे वाला ही अपना एग्जाम्पल देखा जो अभी हम देख के आ रहे थे कि आपने Zn लिया, ठीक है, जो सॉलिड स्टेट में था। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हमने आपको सिखा दिया है कि हाउ इट हैज़ बीन फॉर्म, दैट यू शुड नो, ठीक है। ये हम ओवरऑल अपना रिएक्शन लिख रहे हैं प्लस H2। अब इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि ऑक्सीडेशन कौन है, रिडक्शन कौन है। दिस यू हैव स्प्लिटेड अप। तो आफ्टर स्प्लिटिंग आपको ये मालूम है कि Zn जो है Zn+2 आपका ये कंडीशन थी, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब इसको हमने ऐसे लिखा था कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, देन इट इज़ गिविंग यू Zn+2 जो एक्वस कंडीशन में। बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है, बुक्स में ये ऐसे भी लिखा हो सकता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं क्लास 10th में। सो दिस इज़ व्हाट योर भाई यहाँ इसीलिए मैं लिख देती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाता है माइनस प्लस से। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड अपना पॉइंट देखें H का। तो तुमने देखा था 2H+ है जो एक्वस कंडीशन में है, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ली थी और ये H2 आपका दे रहा था गैसियस स्टेट में। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन था, ठीक है। सो दिस वे यू कैन हैव योर एग्जांपल्स। ये इस तरह से हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो हमने पीछे करा था डिटेलिंग, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो अभी आर अगेन सीइंग द अदर एग्जांपल। सो पहले तो कॉम्बिनेशन बनाना सेट कर दिया करो, देख के ही पता चल जाता है कि इसका पेयरिंग है, इसका पेयरिंग है। सो लेट्स फोकस ऑन इट। Zn जो है चेंज हो रहा है Zn+2 से। नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू। Zn 2 electrons will be minus and this is Zn+2. So Zn it can be written as Zn+2, यहाँ ले जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। अब यहाँ तो क्लियर हो रहा है ना ये क्या कैसा रिएक्शन है। तो ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसी कॉपर में देख लीजिए, जो कॉपर आयंस आपको मिल रहे हैं Cu+2 आयंस जो मिले हैं थे, जो आपको कॉपर सॉलिड दे रहा है। ये तो आपने पेयरिंग बनाई अपनी, है ना। अब ये आपने अपना देखा Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस है, यू ऐड ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू इट, इट गिव्स यू Cus। सो दिस वे ऑल्सो यू आर गेटिंग ए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस। तो ये क्या है आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आई थिंक नाउ द by these two examples you must be clear with this concept how you can judge an oxidizing agent। अगर इसमें मैं पूछूँ तुमसे तो क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताया था गेन, द वन हु गेन द इलेक्ट्रॉन। सो इट इज़ एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज एक्टिंग एज अ व्हाट योर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो दिस वे ऑल्सो दिस इज क्लियर टू यू टू whom you will form give the reducing agent. So this is reducing agent and this is oxidizing. Now overall we have discussed this point. This is a general concept. We'll discuss other things in the other videos. So hopefully practice this thing and understand each and every concept of this initial state of it.